یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ خراسان میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ ذرا طارق دیکھنے میں تو ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کی کمر سے ایک تلوار لٹک رہی تھی۔ طارق جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا، یہ تلوار بھی اس کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات طارق نے خواب دیکھا، اور پھر اگلے دن بھی وہی خواب دیکھا، اور تیسرے دن بھی وہی خواب۔ اب طارق سمجھ گیا تھا کہ یہ خواب ضرور سچا ہے، اور اس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ خواب کسی کو نہیں بتائے گا۔ جب اس کی ماں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، اماں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ بیٹا مجھے سنا دو، میں کسی کو نہیں کہوں گی۔ نہیں اماں، میں اپنا خواب کسی کو نہیں سنا سکتا۔ تمہیں خواب سنانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گی۔ طارق نہ ڈرا نہ رکا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی وہاں سے گزرا۔ اس نے طارق کے رونے اور چیخنے کی آواز سنی اور اپنے سپاہیوں سے کہا، جاؤ دیکھو یہ کون زور زور سے چلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی مظلوم کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ سپاہی گئے اور تھوڑی دیر بعد اطلاع دی۔ قاضی نے کہا، میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں رویا، اور نہ ہی میں کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ فوراً اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہیوں نے طارق کو قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے پوچھا، بیٹا تم اتنی زور زور سے کیوں چل رہے تھے؟ طارق ادب سے بولا، جناب میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور میری ماں مجھے اس لیے مار رہی تھی کہ میں اپنا خواب اسے نہیں بتا رہا تھا۔ قاضی مسکرا کر بولا، بہت خوب، مجھے یقین ہے کہ وہ خواب دلچسپ ہوگا۔ برخوردار، کیا تم میرے بیٹے بننا پسند کرو گے؟ طارق خوشی سے پھولا نہیں سما۔ جی جناب، یہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ قاضی نے ایک سپاہی کو طارق کی ماں کے پاس بھیج کر کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں طارق کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ میرے سر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ بوڑھی ماں نے جب یہ سنا تو اس کا غم خوشی میں بدل گیا۔ دوڑتی ہوئی قاضی کے پاس گئی اور خوش ہو کر بولی، جناب آپ میرے بیٹے کو لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی، بیٹا تم قاضی صاحب کی فرمان برداری کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا۔ جب قاضی صاحب کی گاڑی دوڑ جا چکی تو قاضی نے طارق سے پھر پوچھا، برخودار اب بتاؤ کہ تم اتنی زور زور سے کیوں چلا رہے تھے؟ طارق نے کہا، جناب میں اس لیے چلا رہا تھا کیونکہ میری ماں مجھے مار رہی تھی۔ قاضی نے پوچھا، تمہاری ماں تمہیں کیوں مار رہی تھی؟ طارق نے جواب دیا، میری ماں مجھے اس لیے مار رہی تھی کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور میں یہ خواب کسی کو نہیں سنا سکتا۔ قاضی مسکرا کر بولا، کیا مجھے بھی نہیں؟ طارق بے خوف ہو کر بولا، جی نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی نے کوئی اور بات چھیڑ دی، اور یوں وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، دیکھو بچوں، میں تمہارا نیا ساتھی لایا ہوں۔ تم اس کے ساتھ کھیلنا، لیکن اسے تنگ مت کرنا، کیونکہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور وہ اپنا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ سب سے بڑی لڑکی بولی، تم اپنا خواب مجھے ہی سنا ڈالو۔ لیکن طارق نے نرمی اور ادب سے سر ہلا کر کہا، میں اپنا خواب کسی کو نہیں سنا سکتا۔ منجلی لڑکی نے کہا، کیا مجھے بھی نہیں؟ طارق نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سب سے چھوٹی لڑکی بولی، میں تو ضرور سنوں گی۔ طارق غصے سے بولا، اب اگر کسی نے ضد کی تو میں اسے پیٹ ڈالوں گا۔ یہ بات قاضی کو ناگوار گزری۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، لے جاؤ اس بدتمیز کو، اور جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آئے اسے حویلی مت لے کر آنا۔ نوکروں نے طارق کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن قاضی کی چھوٹی لڑکی وہاں سے گزری، اور طارق کو دیکھتے ہی اس کے خواب کا ذکر یاد آ گیا۔ وہ بولی، اگر تم اپنا خواب مجھے سنا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ طارق کو غصہ آ گیا۔ اس نے 2-3 تھپڑ مار دیے اور بولا، میں نے پہلے ہی کہا ہے، اگر کوئی مجھ سے خواب کے بارے میں کچھ پوچھے گا
तो मैं उसे मार डालूंगा। काजी की लड़की रोती हुई काजी के पास गई और सारी बात बता दी। काजी ने गुस्से में कहा, अब मैं इस लड़के को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इसी दिन शहर के बाहर फांसी का चबूतरा बनाया गया। शहर भर के लोग वहां जमा हो गए ताकि ये मंजर देखें। जब तारिक को फांसी दी जाने वाली थी तो अचानक एक सिनहरी घोड़ा गाड़ी आई जिस पर शाही परचम लहरा रहा था। इस गाड़ी में मुल्क का सुल्तान बैठा था और इसने फौरन हुक्म दिया, इस लड़के की जान बख्श दी जाए। सुल्तान ने सारा माजरा सुनकर कहा, इस लड़के को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और मुझे यकीन है कि ये लड़का अपना ख्वाब मुझे सुना देगा। काजी अदब से बोला, अलीजा, तुम इस लड़के को अपने साथ ले जाओ, हम इस गुस्ताख का चेहरा नहीं देखना चाहते। तारिक की तलवार 2-3 बार जोर जोर से हिली, लेकिन वो खामोश रहा। जलाद ने तारिक की आंखों पर से पट्टी खोल दी और वो सुल्तान के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गया। रास्ते में सुल्तान तारिक के साथ हंसी मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने पूछा, बरखोरदार, आखिर तुमने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा है जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते? तारिक अदब से बोला, अलीजा, जब तक ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं हो जाती मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। सुल्तान मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्वाब मुझे नहीं सुना सकते तो शहजादी मुनीजा को सुना दो। तारिक अदब से कहने लगा, नहीं, मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुना सकता। सुल्तान ने इस पर कोई बात नहीं की क्योंकि ऐसे यकीन था कि शहजादी मुनीज अपनी अकलावर होशियारी से असार राजा गलवा लेगी। जब गाड़ी महल में पहुंची, इस वक्त शहजादी मुनीजा बाग में फूल चल रही थी। जब उसने सुल्तान की घोड़ा गाड़ी देखी तो दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई, लेकिन जैसे ही इसकी नजर तारिक पर पड़ी वो वहीं पर ठहर गई। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, मैं इसे फांसी के फंदे से उतार कर लाया हूं। ये बेवकूफ अपनी एक छोटी सी जद के लिए अपनी जान गुवा देता। फिर वो नरम लहजे में बोला, इसने एक ऐसा ख्वाब देखा है जो ये किसी को नहीं सुनाना चाहता, इसीलिए काजी भी गुस्से में आकर इसे फांसी पर चढ़ा देता। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो आज ये जिंदा ना होता। तारिक को फिर मेहमान खाने में ठहराया गया और सुल्तान ने इसकी भरपूर खिदमत की। एक दिन शहजादी मुनीजा वहां से गुजरी। वो बोली, तुम अपना ख्वाब मुझे सुना दो, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन तारिक सर झुकाकर अदब से बोला, ऐ शहजादी, मैं अपना ख्वाब इस वक्त तक किसी को नहीं बता सकता जब तक उसकी ताबीर मालूम ना हो जाए। ये राज मेरे सीने में महफूज रहेगा और ना जाने कब तक। शहजादी बार बार पूछती रही। पहले तो तारिक ने प्यार से समझाया, लेकिन जब असरार बढ़ गया, तारिक गुस्से में आकर शहजादी को थप्पड़ मार दिया। शहजादी के नाक से खून बहने लगा और वो चीखते चलाते वहां से भाग गई। सुल्तान ने अपनी बेटी का यह हाल देखा तो एकदम सुनाटे में आ गया और फिर गुस्से में बोला, मैं इस गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, एक बहुत बड़ा मीनार तामीर किया जाए। मजदूर मीनार बनाने लगे और शहजादी ने खास हिदायत दें, खिड़कियां ऐसी बनाओ जो किसी को नजर ना आए और इतनी बड़ी हों कि अंदर से खाना और पानी दिया जा सके। हर रोज शहजादी मीनार से खाना भेजती और सिपाही हर रोज सुल्तान को तारिक की खबर देते। तारिक जिंदा सलामत है और पहले से भी ज्यादा सेहतमंद। बादशाह फिक्रमंद होकर बोला, जरूर ये लड़का कोई जादूगर है। फिर एक दिन मंगोल खाकान का काजी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। उसने 3 सरकंडे की झड़ियां दिखाते हुए कहा। सुल्तान ये सुनकर इंतहाई परेशान हो गया। इसने तीनों छड़ियों का बारीक बेनी से मायना किया, लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं था। शहजादी मुनीजा ने अपने बाप को फिक्रमंद देखकर कहा, अबा हुजूर, आप फिक्र ना करें, मैं उसका हल जरूर ढूंढ निकालूंगी। वो दौड़ती हुई मीनार के पास पहुंची और सारा वाकया तारिक को बता दिया। तारिक ने सुनकर कहा, तुम बादशाह के पास जाओ, उनसे कहो परेशान न हो, वो तीनों छड़ियों को पानी में डाल दे। जो छड़ी पानी के बिल्कुल ता में डूब जाए वो जड़ में आ गई, जो दरमियान में ठहर जाए वो दरमियानी हिस्सा, और जो पानी पर तैरती रहे वो ऊपर वाला हिस्सा है। शहजादी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सुल्तान ने छड़ियों को पानी में डालकर अंदर निशान लगा दिए ताकि कासिद वापस करते वक्त गलती न हो। अगले रोज सुल्तान ने छड़ियां वापस कर दी
और मंगोल खाकाना का बकारा गया। यूं जंग का खतरा कुछ सालों के लिए टल गया। कुछ अरसे बाद मंगोल खाकान के दिल में फिर जंग का ख्याल आया। उसे बहाना चाहिए था, इसलिए कासिद दोबारा सुल्तान के पास भेजा गया। कासिद ने तीना या खेरें के चोजे सुल्तान के सामने रखे और कहा, बादशाह ने पूछा है कौन सा बच्चा सुबह के वक्त पैदा हुआ, कौन सा दोपहर में और कौन सा शाम को। अगर जवाब ना दे सके तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। सुल्तान का दिल डूब गया। इसी साल मुल्क में ताउन से बहुत नुकसान हो चुका था। पिछली बार शहजादी ने किसी ना किसी तरह लड़का बचाया था। अब भी सुल्तान परेशान थे। शहजादी मनीजा ने अपने बाप को देखकर प्यार से कहा, अबा हुजूर परेशान ना हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकाल देगा। वो दौड़ती हुई मीनार के पास गई और सारा वाकया तारिक को बता दिया। तारिक ने एतमाद से कहा, फिक्र ना करो, रोज की तरह आज रात भी लेट जाओ और फिर पिछले पहर उठकर बैठ जाओ। अगर सुल्तान मंगोल खाकान के सवाल का जवाब ना दे सके तो मंगोल शहजादी को उठाकर ले जाएंगे। इस दौरान मीनार के अंदर एक लड़का नमोदार हो जाएगा और वो सवालात का जवाब दे देगा। शहजादी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सुल्तान ने फौरन तारिक को मीनार से निकालने का हुक्म दिया और कहा, तुम आजाद हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दो। सुल्तान ने फिर मंगोल खाकान का खत निकालकर तारिक को दिया और कहा, लो इसे पढ़ो और बताओ कि तुम हमारी किस तरह मदद कर सकते हो। याद रखो, अगर जवाब न दे सको तो नतीजा हमारी तबाही और बर्बादी होगा। तारिक ने खत पढ़ा और एतमाद से कहा, आप इत्मीनान रखें, पहले 3 एक जैसे प्याले मंगवा लीजिए, एक में जिनसी, दूसरे में गेहूं और तीसरे में जो भरे हुए हों। जो चोजा गेहूं खाए वो सुबह पैदा हुआ, जो खाए वो दोपहर में, और जो जिनसी खाए वो रात को पैदा हुआ। सुल्तान ने तारिक की बात पर अमल किया, चोजों की शिनाख्त कर ली और तीनों को निशान लगाकर मंगोल खाकान के पास वापस भेज दिया। मंगोल खाकान का मंसूबा धरे का धरा रह गया। फिर इसने अपनी खाला को बुलाया, जो मुल्क की सबसे चालाक औरत थी। उसने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब बादशाह ने नहीं दिए। जो जवाब देने वाला है वो एक बूढ़ी मां का बेटा है। अगर वो जिंदा रहा तो एक दिन तख्त पर बैठेगा। अगर तुम सुल्तान का मुल्क फतह करना चाहते हो तो पहले इस लड़के को बुलाकर मार दो, वरना ये लड़का तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मंगोल खाकान ने फौरन एक सिपाही के हाथ पैगाम भेजा, महल में जो नौजवान ठहरा हुआ है उसे हमारे पास भेज दो, वरना हमारी फौज तुम्हारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देगी। मंगोल खाकान का खत पढ़ा तो उसका दिल भर आया। वो तारिक का एहसान मंद था। इसकी अक्ल और बहादुरी ने सल्तनत को बार बार तबाही से बचाया था। सुल्तान ने जब ये बात तारिक को बताई तो सबके बरखिलाफ तारिक हिंस पड़ा। वो अदब से बोला, आलीजा, आप मेरे जैसे 2 हम शक्ल लड़के तलाश करवा दीजिए, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। सुल्तान ने हुक्म दिया और जल्द ही तारिक जैसे 2 लड़के तलाश कर लिए गए। तारिक ने तीनों को एक जैसे कपड़े और जूते पहनाए। अब उनमें फर्क करना नामुमकिन हो चुका था। सुल्तान ने तीनों को कासिद के साथ मंगोल खाकान के पास भेज दिया। मंगोल खाकान ने उनकी खूब खिदमत की, हाल पूछा, सवाल किए, और हैरत की बात यह कि तीनों ने एक ही आवाज में जवाब दिया। जब बैठने का कहा तो तीनों एक साथ बैठ गए। जब खड़े होने का कहा तो तीनों एक साथ खड़े हो गए। मंगोल खाकान परेशान हो गया। इसकी खाला, वही बूढ़ी जादूगरनी, आगे बढ़ी और बोली, कल तुम इसे पहचान लोगे। जिस लड़के की आस्तीन फटी हो इसी को फौरन कत्ल कर देना। रात आई। तीनों लड़के एक ही कमरे में एक ही पलंग पर सो गए। अंधेरे में वो बूढ़ी औरत दाखिल हुई। वो आम औरत नहीं थी, जादूगरनी थी। उसने जादू से पहचान लिया कि उनमें तारिक कौन है और चपके से तारिक की आस्तीन फाड़ दी और खामोशी से वापस चली गई। सुबह जब तीनों लड़के जागे और आस्तीन फटी देखी तो बगैर एक लफ्ज कहे दोनों हम शक्ल लड़कों ने भी अपनी आस्तीनें फाड़ डाले। नाश्ते के वक्त बूढ़ी जादूगरनी खिड़की से झांक रही थी और ये देखकर सुनाटे में आ गई कि तीनों लड़कों की आस्तीनें फटी हुई थी। मंगोल खाकान एक बार फिर नाकाम हो गया। आखिरकार उसने तीनों को खुरासान वापस भेज दिया।
सुल्तान और शहजादी मुनीजा तारिक को देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन सुकून ज्यादा देर का मेहमान न था। एक दिन फिर मंगोल खाकान का पैगाम आया, ये लड़का खतरनाक है, इसे दोबारा भेजा जाए, और इस बार अकेला। सुल्तान और शहजादी गमज़दा हो गए, मगर तारिक मुस्कुराकर बोला, फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह तारिक तुन्हा सफर पर रवाना हो गया। जब वो मंगोल खाकान के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो वही बूढ़ी जादूगरनी सामने खड़ी थी। उसने सर्द आवाज में कहा, ये दरवाजा तुम आखिरी बार पार कर रहे हो, अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। तारिक की कमर से लटकी तलवार जोर जोर से हली, मगर तारिक खामोशी से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो सहन में दाखिल हुआ, सैकड़ों मंगोल सिपाही तलवारें लिए इस पर टूट पड़े। अचानक तारिक की तलवार बिजली बनकर म्यान से निकली और लम्हों में सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट डाला। बूढ़ी जादूगरनी ने यह मंजर देखा तो कांप उठी। इसने तलवार चराने की कोशिश की, मगर तलवार ने उसकी नाक जड़ से काट दी। वो रोती चीखती मंगोल खाकान के पास पहुंची। मंगोल खाकान ने पूरी फौज को हुक्म दिया, उसे पकड़ो, तलवार छीन लो। लेकिन तारिक की तलवार ने पूरी फौज का सिफाया कर दिया और तारिक को एक खराश तक न आई। दूसरी तरफ सुल्तान ने फौज जमा की और बगदाद के खलीफा ने भी एक अजीम लश्कर मदद के लिए भेज दिया। जब लश्कर मंगोलों की सरहद के करीब पहुंचा तो सामने से तारिक आता दिखाई दिया। तारिक ने सारा हाल सुनाया और फौज ने नारे लगाए। महल वापस आकर सुल्तान ने तारिक को अपने पास बिठाया और कहा, बेटे, तुमने अक्ल, बहादुरी और वफादारी से मेरी सल्तनत बचा ली। अब तुम शहजादी मुनीजा से शादी करोगे। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। तारिक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आलीजा, मैं एक गरीब बढ़िया का बेटा हूं, क्या वाकई मुझ पर भरोसा है? सुल्तान ने कहा, तुम 3 बार सल्तनत बचा चुके हो, अगर कोई शहजादी के लायक है तो वो तुम हो। शहजादी मुनीजा शर्मा गई, मगर दिल ही दिल में बेहद खुश थी। शादी की तैयारियां हुई, पूरा शहर चिरागों से रोशन हो गया। निकाह के दिन तारिक ने वही तलवार बांधी जो बचपन से उसके साथ थी। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की और तलवार नूर से चमकने लगी। अचानक एक आवाज गूंजी, तारिक, अब तेरा ख्वाब पूरा हो गया। तारिक चौंक उठा। सुल्तान ने पूछा, बेटे, ये क्या माजरा है? आलीजा, मेरा ख्वाब था कि एक दिन मैं ऐसी तलवार का मालिक बनूं जो रोशनी और सच्चाई की अलामत हो, और आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी सुनने का दिल से शुक्रिया।